there's this brain region called dorsal striatum. तो ये जो ब्रेन रीजन है दैट इज वेरी मच इन्वॉल्व इन द होल हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस. दोस्तों के साथ मिलना है, चलो यार दोस्तों के साथ मिले, चलो एक सिगरेट पी लेते हैं, चलो दारू पी लेते हैं. सो दैट इज काइंड ऑफ एक्टिव गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. बट वंस दैट गेट्स इनटू योर dorsolateral striatum, that becomes your habitual behavior. हमें पता भी नहीं चलता है कितनी बार हमारा ध्यान बस हमारा हाथ ऐसे उठता है और हम फ़ोन Yeah, को अनलॉक करते yeah, हैं yeah, और देखते हैं कि कुछ नया नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया. जैसे yeah, वो पैकेज की बात आपने करी अमेज़ॉन yeah, का, तो ऐसा ही कुछ और आया कि नहीं, किसी ने हमारा yeah, फ़ोटो लाइक किया कि नहीं, yeah. कितने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. मोबाइल फ़ोन्स विथ इंटरनेट आर द वर्स्ट इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन काइंड, मुझे ऐसा लगता है. This is मतलब वही basically rechannelize your way of pleasure, I guess. यस. मतलब जो जो अनहेल्दी एस्पेक्ट से यू कैन मूव इट टू अ हेल्दी एस्पेक्ट, जैसे वर्किंग आउट वगैरह, या फिर मीटिंग पीपल, like socializing more than just sticking your phone in your hand and sticking your vision in the phone. तो उससे बेहतर this. बट फ़ोन क्या है कि फ़ोन अनफॉर्चुनेटली काम फ़ोन पर होता है, तो या तो True. पुराने वाले ज़माने में चले जाएं और जैसे विमो भाई करते हैं कि अपना एक डब्बा फ़ोन ले लिया जाए जिसमें व्हाट्सएप हो, वो वाला काम किया जाए जिसमें डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है. Correct. या फिर इस तरह की ऐप्स यूज़ की जाएं जो आपको लॉक आउट कर देती हैं कि लॉक ही रहेगा इस समय पर, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर है. वेलकम काजोल, thank you so much for agreeing to speak to me. Oh, And thank you for inviting me. no, it's my pleasure because I always wanted to talk to you about your specific area of what you are studying. Mhm. It's a very interesting area. So let's just start with in your introduction to my audience, like what you are doing and what's something that you are working on. I don't know where to start from because my journey to neuroscience has been a really nice roller coaster. Because uh, there was a time when I did not know that neuroscience within itself as a field existed. Okay. So back in India, when I finished my 11th and 12th, I was um, so I wanted to do mass media, but then many people, including my mom, thought I speak very well. So other people really kind of tried to convince my mom to have me go towards, being a lawyer or get into IAS and stuff. So Okay. they were like, yeah, you should ask your daughter, you should get your daughter into these streams. And then I was like, okay, yeah, that sounds good. So I moved on to, pursue law. So 12th ke baad I got into law, but law पढ़ने से ज़्यादा I played volleyball. So yeah, so law में उतना मज़ा भी नहीं आ रहा था. And then I realized, okay, probably this is not what I want to do. So So it took that was in India. India, yes. Okay. Okay. So it took me like a lot of courage to talk to my parents that, okay, I think this is not what I want to do. I would like to drop out and maybe do something else. तो दूसरा क्या? तो I have like basic musical training. तो मुझे ऐसा लगा कि I would like to pursue music like full time. ऐसा Okay. maybe take a degree, bachelor's and आगे अगर scope मिले जैसे भी हो, I'd go for music. So my parents are like उनके लिए मतलब their thought is अगर तुम playback singer बने तो ही that is kind of a success in musical field. So Okay. I was like, okay, so if वो नहीं, then what else? So my mom suggested, oh, you had psychology 11th 12th में, वो तुमको पसंद आया था, तो why don't you like think of it? फिर मैंने सोचा and I decided, okay, psychology it is. और फिर bachelor's of arts किया psychology में, and then psychology के बाद क्या? So I'm kind of a person who likes to plan way ahead of time. So Okay. even before I started my bachelor's, I was thinking उसके बाद क्या होगा? So um, so I started to look into specializations, जो भी streams areas है psychology में, and I came across neuropsych. तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये था कि भाई ये सुनने में कितना सही लगता है, न्यूरो साइकोलॉजी. लाइक देन आई लुक्ड इनटू इट एंड आई फिगर ठीक है ये कुछ तो ब्रेन के साथ इट डील्स विद समथिंग अबाउट ब्रेन्स और नर्वस सिस्टम भी नहीं, एक्चुअली ब्रेन.
So this has to Mm-hmm. do something that deals with brains. So I'm like, okay, this sounds interesting. I think I'd like to go for this. So psychology होने के बाद I was तभी से I was planning to come to US, but नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे they need a 4 year of bachelor और bachelor degree Yes. और हमारा 3 साल का था. So I found one university that was offering masters in neuropsychology India में. So I Mm-hmm. did my masters वहाँ पर, and that's where I got introduced to neuroscience. I'm like, okay, so bachelor's of arts. So the career train went as in started from law, फिर psychology, फिर neuropsychology, and now वहाँ पे I got introduced to neuroscience. I was like, okay, now I think this is something I would like to do. फिर मैंने फिर से अप्लाई करने की कोशिश की and got into मास्टर्स का प्रोग्राम इन न्यूरोसाइंस यहाँ पर. So that's how I came Okay. here, did my masters, and it was like ये इंडिया में क्यों नहीं है ऐसा ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो इतना Yeah. हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस था. लाइक आई कुड रियली सी अ वेरी स्टार्क difference in myself, like from the day I started here to the day I graduated. That was like a very huge difference in terms of personality development bhi, or of course technical skills, lab skills, or knowledge itself aisa. And then I was like, ठीक है, अभी I need to go for a PhD. I am so into it. And Okay. then now I am pursuing PhD. अभी just second year start हो रहा है अगले actually ये Monday से. So yeah, Oh, my semester starts from Monday. So nice. yeah. So basically currently I am a second year PhD student in behavioral neuroscience. जैसे आपका एरिया है एंड अगेन यू कैन टॉक अबाउट योर लर्निंग एंड योर एक्सपीरियंस एज वेल. Mhm, mhm, सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि हाउ डू वी लर्न एंड अनलर्न थिंग्स और स्किल्स. लाइक थिंग्स और स्किल्स हमको कंबाइन कर सकते हैं. mhm, हाउ डू हैबिट्स फॉर्म एंड mhm. again how much time it takes to form new habits or why it is so difficult to form new habits, things like that. So habits in general हम बात करने वाले हैं. Hmm, hmm, hmm. So, starting from first question was how do we learn and unlearn And things? unlearn things, yes. Yeah, so learning actually is a very basic phenomena, I guess. Most of this, I just a disclaimer. Most of it, जितना मेरा knowledge है, उस हिसाब से I'm going to uh, give my opinions. So Sure. you guys should cross check. एब्सोल्युटली Yeah, एब्सोल्युटली, वो तो हमेशा करना है, right. वो तो हमेशा करना है. राइट. दिस सो हाँ. या जितना जितना मैं समझती हूँ, जितना मैंने जाना है, उस हिसाब से आई विल बी बेसिंग माय ओपिनियंस ऑन. सो एब्सोल्युटली. या स्टार्टिंग फ्रॉम learning. So as much as I have understood how human, or for that matter any brain works, learning is a really basic phenomena which just comes out. मतलब पहले से ही वो ह्यूमंस रहे, वो एनिमल्स रहे, वी लर्न थिंग्स, राइट. मतलब इवन लर्निंग दिस थिंग बचपन में व्हेन बेबी क्राइज और फिर उसको चीज मिलता है. सो दैट इज ऑल्सो अ लर्निंग प्रोसेस, राइट, कि अगर मैं रोऊं तो मुझे जो मुझे चाहिए वो मिल जाएगा, या फिर अटेंशन है वो मुझे मिल जाएगा. सो वो जो लर्निंग इज लाइक वेरी पता नहीं, आई थिंक आई एम जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ, बट इट्स लाइक वेरी बेसिक और वेरी consistently happening throughout our ages thing. Or I think habits, if we talk about habits, habit is a part of learning, I guess. Kyuki, so there are these, there's this brain region called dorsal striatum. तो ये जो ब्रेन रीजन है दैट इज वेरी मच इन्वॉल्व इन द होल हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस. सो इसके भी दो हिस्से हैं, मीडियल एंड लैटरल. मीडियल इज बेसिकली अंदर की साइड, लैटरल इज बाहरी साइड. सो जो डॉर्सल स्ट्राइटम का अंदर का साइड है, मीडियल साइड, डॉर्सो मीडियल स्ट्राइटम, दैट इज मोर इन्वॉल्व इन गोल डायरेक्टेड जो कंट्रोलिंग बिहेवियर रहता है. जैसे एक्टिवली चीज में इनपुट डालना टू लर्न दैट, या फिर टू फॉर्म समथिंग. जैसे इफ यू पीयर प्रेशर में आके तुमने ड्रिंक कर लिया या स्मोक कर लिया, सो इनिशियली यू हैड टू लाइक पुट एफर्ट्स इन दैट गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, राइट. तो जब तुम स्मोक करते हो तुमको एक्टिवली एफर्ट
एफर्ट, हाँ वही कॉन्शियस एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, एंड देन मे बी यू प्रोबेबली लाइक इट, देन अगेन यू डू इट। तुम्हारे वो तुम्हारा एक ये रहता है कि तुमको पता है तुमको ये जाके करना है। मतलब इट इज नॉट एन ऑटोमेटिक थिंग, राइट? दोस्तों के साथ मिलना है, चलो यार दोस्तों के साथ मिले, चलो एक सिगरेट पी लेते हैं, चलो दारू पी लेते हैं। सो दैट इज काइंड ऑफ एक्टिव गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। बट वंस that gets into your dorsolateral striatum, that becomes your habitual behavior. So उस टाइम पे इट इज जस्ट अबाउट हैबिट, मतलब अब आदत लग गई है, अब छूट नहीं रही है वो आदत। बट हैबिट इज नॉट एडिक्शन, हैबिट इज नॉट डिपेंडेंस, हैबिट इज बिफोर दैट आई गेस, एंड देन इट अल्टीमेटली जो भी ब्रेन में न्यूरोकेमिकली प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, इट moves towards dependence and addiction ultimately. So yeah, that's how habits form. And why is it hard to form? You I think ऐसे जो um, जिस चीज में सब प्रोएक्टिवली हमें ये करना रहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इट नीड्स लाइक प्रोएक्टिव एफर्ट्स टू फॉर्म समथिंग, तो वो ऑटोमेटेड होने तलक यू नीड टू लाइक कीप डूइंग इट कॉन्शियसली, और वो छूटने के ज्यादा चांसेस होते हैं, लाइक यू आर लाइक actively doing, but then something happens, maybe your schedule is so tight that you're not able to keep up with that uh, process of habit formation. कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ मी, आई वॉन्ट टू रीड सो मैनी थिंग्स। मेरे पास इतने सारे बुक्स पढ़े हैं, एंड उसमें से बहुत सारे बुक्स अनरेड है, उसमें से बहुत सारे बुक्स हाफ रेड है, एंड सम ऑफ देम आई एम अप्रोचिंग टूवर्ड्स एंड, बट आई हैव टू डू दैट, आई वॉन्ट टू डू दैट, बट बिकॉज ऑफ द होल स्केड्यूल आई एम नॉट एबल टू मैनेज। सो वो प्रोएक्टिवनेस जो चाहिए रीडिंग का हैबिट फॉर्मेशन के लिए, वो आई एम नॉट एबल टू डू। सो देर कुड बी लाइक मल्टीपल थिंग्स अफेक्टिंग योर एबिलिटी टू फॉर्म द हैबिट। सो दैट इज वॉट आई थिंक। और फिर once you like consistently do things, it probably gets into the dorsolateral striatum, and then it's a automatic thing जो मतलब yeah. uh, and about your third question, what was it? कितना time लगता है? Why it is so difficult to form new habits? Basically Oh, वही आपने बोला, yeah. वही Okay. सेम चीज़ है, Yeah. क्योंकि जैसे हम बेसिकली एक और एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं, Yeah. जो मैंने बहुत पहले बुक से बहुत पहले पढ़ा था, जो मैं खुद भी मैंने उसको देखा समझा। Yeah. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने गराज से गाड़ी निकाल रहा हूँ, बैक कर रहा हूँ, और मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, राइट? तो इफ़ आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, इफ़ आई एम एक्चुअली बैकिंग आउट माई कार फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड इफ आई एम टेकिंग अ न्यू रूट, मैं एक Right. नया बिल्कुल नया रास्ता ले रहा हूँ काम Right. पे जाने के लिए, तो आई बी वेरी केयरफुल, Yeah. ठीक है ना? बिकॉज दैट हैबिट इज़ नॉट बिल्ट इन टू माई ब्रेन, सो आई हैव टू एक्चुअली कॉन्शियसली मेक द Yes. एफर्ट, जैसा आपने बोला, Yes. कॉन्शियसली मेक द एफर्ट टू एक्चुअली बैक आउट द कार Mm-hmm. एंड एक्चुअली गो टू द रूट। और वहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कोई पॉट होल्स तो नहीं है इंडियन Mm-hmm. कॉन्टेक्स्ट की बात करूँ तो। और बाहर भी होते Right. हैं भाई Yeah. गड्ढे सड़कों पर ऐसा नहीं है। और वहाँ पे जाते हैं तो फिर हमें देखना पड़ेगा कहाँ पे कितनी ट्रैफिक लाइट्स हैं, कहाँ पे कितना ट्रैफिक है, Yeah. सो एंड सो। और Yeah. जैसे जैसे हम ये काम करने लग जाते हैं, देन इट एक्चुअली गोज इनटू आवर हैबिट, Automated system. Yeah. ऑटोमेटेड सिस्टम। हम Yeah. गाड़ी का रिवर्स गियर लगाते हैं, Yeah. और हमें पता भी नहीं चलता, हम अपना दिन भर की प्रॉब्लम्स पे वंडर Yeah. करते करते हम चले जाते हैं सीधे सीधे, Yeah. और वो एक हैबिट में बन जाता है। Yeah. तो वही कॉन्शियस एफर्ट है, Right. और पहले हमें कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता है, और फिर हमें कोई हैबिट नहीं करना पड़ता। सेम गोज़ फॉर फर्स्ट सिगरेट पीने के लिए बहुत लोग सोचते हैं, Yeah. जैसा Yeah. आपने बोला। Yeah. और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सिगरेट्स पीते जाता है, इंसान सोचता भी नहीं है कि पैकेट पड़ा है Yeah. मेरे पास और मैं उसको उठा लेता हूँ। जैसे Yeah. इट गोज़ फॉर एवरीथिंग। मीठा खाना है, जैसे मेरे लिए Yeah. चाय छोड़ना बहुत मुश्किल है। Oh, same. पहले Oh my God. Same. यस है ना, सुबह सुबह अगर या तो मेरे को चाय बनी हुई मिलती है मेरी बीवी द्वारा, या फिर Lucky मुझे you. कभी चाय, मतलब इट्स ऑल 50-50 मोस्टली, Yeah. इधर Yeah. शी Yeah. मेक्स और आई मेक। सो इफ शी Yeah. हैज़ नॉट मेड आई विल मेक, और Yeah. वाइस वर्सा। तो Yeah. चाय ज़रूर बनती है। तो अब नाउ Correct. शी हैज़ स्टार्टेड टू क्विट द हैबिट, बट आई कैन नॉट for some reason. Yeah. So again, I have to make a conscious effort, and Yeah. then but I think it's difficult, but it's doable Yeah. for Yeah. everything. For Yes. everything, it's doable. So yeah, Exactly. uh, So, yeah, this is what unlearning and learning is. Everything is so interconnected that,
मतलब ये हैबिट फॉर्मेशन इज ऑल्सो वन वे ऑफ लर्निंग समथिंग. इट्स लाइक अ part of learning, as यस. I said. And then when you have to stop it, it is also again requiring a conscious effort. So वो unlearning है. तो इसमें भी mechanisms है, जैसे when you like keep doing things frequently, your neuronal connection. So once when you do something for the first time, there is this new connection formed in your brain, right? So as you keep doing those things more frequently, करते रहो, these connections that have formed get even stronger and stronger and stronger. So that is True. called yeah, so that whole thing is called, terminology में घुसना नहीं है, but just to sound cool. नहीं it, नहीं, प्लीज टर्मिनोलॉजी बताइए. yeah, it is ए, called long term potentiation. Long term potentiation is basically your these synapses is basically दो neurons के बीच की जगह. So ये जो connection है, ये जो sorry, ये जो exchange चल रहा है in action potentials का या जो भी है, वो जितना जितना तुम वो चीज ज्यादा करते हो उतना वो स्ट्रेंथन करता है उन सिनेप्सेस को. दैट इज द लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, which basically gets into learning things and then eventually forming habits. And या. then when you have to unlearn things, you need to make these connections weaker. तो या. वो कैसे करोगे? बाय नॉट पुटिंग एफर्ट्स और नॉट डूइंग दैट. वो भी कॉन्शियस एफर्ट है टू नॉट डू समथिंग दैट इज वेरी इनटू हैबिट नाउ. So वो unlearn करना. So what is happening after that? You are like weakening these connections, which is called long term depression. So you are Oh. very depressing that connection. So that's how it is, like that is one of the mechanism that is thought to unlearn things, is what I And think. not to be confused with depression, Yeah. the Yeah. that also we have to. और Yeah. just to quote my good friend जो बोलते हैं हमेशा, जो हमारे साथ बहुत सारे पॉडकास्ट करते हैं कि इंसेंटिव, तो इंसेंटिव वाले सर हमारे भाई अंकित वर्मा, वो हमेशा बोलते हैं कि इंसेंटिव की बात करते हैं, तो हम तो ये बात सुन सुन कर बहुत दिमाग में बैठ गई है कि इंसेंटिव होगा. और ये एक्चुअली इट्स गुड बिकॉज क्यों, मान लीजिए कि मैं एक एक्टर हूँ या मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसको अगर 10 करोड़ रुपए दिए जाएं और बोला जाए कि 3 महीने हैं तेरे पास, तुझे 20 किलोग्राम वज़न घटाना है और 10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे तुझे, या 1 करोड़ भी छोड़ दीजिए, एक Yeah. करोड़ रुपए मिल जाएं, एक Yeah. करोड़ रुपए मिल जाए, तो that gives me an incentive to actually leave my habits of eating unhealthy, not Yeah. working out, and then I'll just put all my effort because there's an incentive involved Yeah. Yeah. टू वर्कआउट एंड एवरीथिंग. तो ये वाली बात है. अब उसको दूसरे तरीके से देखते हैं कि जैसे किसी इंसान को बोला जाए कि तुम्हारे पास 3 महीने हैं जिंदा रहने के लिए, वर्कआउट कर लो, अनहेल्दी छोड़ दो तो तुम जी जाओगे, तो दैट्स अ बिगर इंसेंटिव कि 1 करोड़ Yeah. रुपए से बढ़िया कि मैं Yeah. जिंदा रह लूँ. Yeah. सेम गोज फॉर दैट. तो Yeah. उसमें कॉन्शियस एफर्ट में लगाऊंगा और मेरी ज़िंदगी बच जाएगी या मुझे पैसे मिल Yes. जाएंगे. ईदर ऑफ And द टू. here comes the dopamine. Yeah. Oh yeah, that's come to your username on Instagram. It's very cool, like dopamine. Thank you. Wordplay on that. Yeah, really good. So yeah, मतलब ये incentives में भी it's kind of a reward, right? Like right, you're Oh like yeah. rewarding yourself. So and we know how dopamine plays a role in reward. So Yeah. Yeah. y- Uh, तो जब हम उस तरफ मुड़ ही गए तो उसी तरफ बात कर लेते हैं कि जैसे हैबिट्स की बात करी हमने, तो हैबिट्स अगर एक सीमा से ज़्यादा हो जाती हैं तो उसको एडिक्शन कहते हैं. कि जैसे मेरी हैबिट है सुबह उठते ही फ़ोन लेना, Mhm. और अगर मैं 2 घंटे उसमें बर्बाद कर रहा हूँ तो वो हो गया एडिक्शन, कि Correct. मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ. या चाय मुझे बहुत पसंद है तो मैं चाय के बिना नहीं रह पा रहा हूँ, तो वो एडिक्शन है, राइट. दीज आर माइल्डर एडिक्शंस कंपेयर टू ड्रग एडिक्शन और एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस एडिक्शन. Yeah. तो वो ठीक है. तो Yeah. अब एडिक्शन की बात करते हैं. तो फिलहाल अगर हम बात करें जो एक बहुत बज़वर्ड है डोपामाइन डिटॉक्स वाला, कि बहुत लोग ऐसा करते हैं और मैंने भी किया, इट हैज़ वर्कड फॉर मी. बट यस, कि मैं सेल फोन नहीं लूँगा पूरा एक दिन तक और शाम को लूँगा उसके बाद. और अब मैं कॉन्शियस एफर्ट कर रहा हूँ अपने फ़ोन में कि मैं जो स्क्रीन टाइम होता ही है, Yeah. but it's very easy to actually bypass screen time. So there's a app, and I'm again there's no sponsorship unfortunately, but वो app बहुत अच्छी है.
तो Yeah. डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ओपल ऐप करके है, और कोई स्पॉन्सरशिप नहीं, मुझे कोई पैसा भी नहीं मिला उनसे, बट उस ऐप के थ्रू मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी। आई डोंट नो वेदर इट्स गुड और नॉट, बट हाँ, Mhm. उसमें क्या होता है कि जैसे डोपामाइन डिटॉक्स की बात कर रहे हैं हम, Mhm. तो जैसे मैं मेरा मेरा अगेन मेरी हैबिट है कि मैं फ़ोन को अनलॉक करूँगा और मैं दो तीन चीज़ें देखूंगा, या तो इंस्टाग्राम या मैं यूट्यूब देखूंगा, या दो Mhm. तीन चीज़ें जो मेरा हैबिट है सबसे Yeah. पहले अनकॉन्शियसली मैं सुबह उठ के Yeah. देखूंगा। Yeah. तो Yeah. वो चीज़ मैंने लॉक कर दिया कि सुबह का टाइम उसमें मैं नहीं कर सकता। Mhm. आई कैनॉट गो ऑन यूट्यूब, आई कैनॉट गो ऑन इंस्टाग्राम। वो उसमें Mhm. 3-4 लेवल होते हैं कि और उस दौरान वो बंद है दुकान बेसिकली। तो वो एक तरह से जेल जो होता है ना, वो एक Yeah. फ़ोन के लिए भी फ़ोन जेल होती है, जिसमें एक Yeah. फ़ोन डाल देते हो, टाइमर लगा देते हो, और आपको लगता है कि 2 घंटे बाद ही मिलेगा फ़ोन। Right. यू माइट हैव हर्ड ऑफ इट, राइट? तो बहुत चल रहा है वो भी पूरा नॉर्थ अमेरिका में, और पूरे उसमें कि फ़ोन जेल लोग ले रहे हैं और उसमें अपना फ़ोन डाल रहे हैं और उसको रिकॉर्ड टाइम लगा रहे हैं कि हाँ, इसके बाद ही फ़ोन मिलेगा। तो इट्स काइंड ऑफ अ फ़ोन जेल, दैट ऐप। कि Yeah. उसके उन ऐप्स को आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तो Mhm. बेसिकली मुद्दे की बात यह है कि Mhm. हाउ डोपामीन अफेक्ट्स अस, एंड Mhm. हाउ टू एक्चुअली यूज़ इट फॉर आवर ओन बेनिफिट, अगर हम इस बारे में बात कर सकें तो। Okay. Before getting there, let's understand what dopamine does, how या, it functions. यस, So, f- first and foremost, so basically, it's a neurotransmitter, right? It is a chemical in your brain which is involved in several different things. So, traditionally, jitna hame pata tha, we knew that dopamine is involved in reward. So reward processing ki kuch hame pasand aa gaya, so we feel like, oh, nice. So wo jo feeling hai, feeling rewarded, that is because of dopamine. So dopamine release tabhi increase hota hai, that is why you feel that feeling, the rewarding feeling. बट इवेंचुअली बहुत सारे रिसर्च और हुए कि डोपामीन का रोल एग्जैक्टली क्या है, व्हाट इज एग्जैक्ट, इज इट जस्ट लिमिटेड टू रिवॉर्ड और इज इट इन्वॉल्व इन समथिंग एल्स एज वेल. सो टर्न्स आउट इट्स नॉट लिमिटेड टू रिवॉर्ड ऑफ कोर्स. सो फिर पता चला कि ओके, मे बी जस्ट नॉट रिवॉर्ड बट एक्चुअली डोपामीन मतलब रिवॉर्ड में तो है ही ऑफ कोर्स. सो व्हाट द साइंटिस्ट्स डिड वाज बेसिकली ये जो एक ऑपरेंट चेम्बर करके का सेटअप है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसमें दे देर आर लाइक दीज लेवर्स जहाँ पे रैट्स को व्हेन यू पुट इन, और वो लेवर अगर एक स्पेसिफिक लेवर प्रेस करेगा, लेट्स से एक लेवर है और वो लेवर प्रेस किया, देन इट गेट्स समथिंग रिवॉर्डिंग, लेट्स से फूड. तो अगर फूड मिला एंड व्हेन द रैट लर्न्स दिस, सॉरी, पहली बार प्रेस किया accidentally maybe, and the rat got food. As soon as the rat ate food, the scientists saw that there was a dopaminergic surge in their brains in this specific region, जो reward pathway में involved है basically. uh, After that they noticed that eventually जैसे बार yeah, I'm going a दैट्स ओके। little पीछे. So हाँ, शुरुआत में एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट में दे डिड सी द डोपामिनर्जिक सर्ज व्हेन द रैट गॉट द रिवॉर्ड. सो दैट्स हाउ दे एसोसिएटेड, ठीक है, डोपामिन इज फॉर रिवॉर्ड. बट देन एज द एक्सपेरिमेंट प्रोग्रेस्ड, व्हेन द रैट स्टार्टेड टू लर्न दिस होल एसोसिएशन कि भाई ये दबाने से मुझे रिवॉर्ड या फिर ये फूड मिल रहा है, ये जो लर्निंग एसोसिएशन है उसमें भी डोपामीन इंक्रीज दिखा. सो दैट इज बेसिकली लर्निंग अबाउट समथिंग, लर्निंग टू एसोसिएट टू थिंग्स, उसमें भी डोपामीन एक्टिव है. सो डोपामीन इज इन्वॉल्व इन नाउ रिवॉर्ड एंड लर्निंग. नाउ सो अभी ये जो लेवर्स है ना, दे आर रिट्रैक्टेबल. ओके, दे कम आउट, रैट प्रेस द लेवर, इट गोज इन, द फूड इज डिलीवर्ड. सो नाउ और ये सब पे ऐसा साइंस, मतलब व्हेन रैट प्रेसेस द राइट लेवर, उसका साइन उसको एक क्यू, लाइट क्यू से मिलता है. लाइट क्यू या टोन क्यू, मतलब लेवर प्रेस करने पे टोन बजेगा या फिर लाइट फ्लैश होगी. सो रैट लर्न दैट ओके दिस इज द करेक्ट रिस्पॉन्स. तो मतलब वो जो एसोसिएशन, फिर अभी लाइट जल गई, मतलब आई एम गोइंग टू गेट द फूड नाउ. सो अंडरस्टैंडिंग वो एसोसिएशन या फिर अंडरस्टैंडिंग कि अभी मुझे मिलने वाला है, लाइट जली मतलब अभी फूड आएगा. सो वो जो एंटिसिपेशन है, दैट रिलीज्ड डोपामीन.
So even when, like for example, हमारे केस में say you get a notification Amazon से कि आज आपका पैकेज डिलीवर होने वाला है, so that कि भाई आज आने वाला है, okay, I'm excited for this thing. And then you get a notification कि your package delivered, and then you get this, अरे आ गया चलो भागो, and then go grab the package and open it. So वो जो पूरा anticipation और फिर वो reward वाली जो चीज़ है, that's where dopamine is also वहाँ पे वो सर्ज आ रहा है तुम्हारे ब्रेन में, दैट्स मेकिंग यू फील दैट एक्साइटेड कि ओह माय गॉड, वो वाला, सॉरी आई एम जस्ट गेटिंग अ लिटिल एक्साइटेड नाउ, सॉरी। सो दैट, फिर ऐसा भी कई कई एक्सपेरिमेंट्स में ऐसे भी देखा गया है कि जो चीज तुमको पसंद नहीं आई है, वहां पे भी डोपामिन रिलीज हुआ है। सो व्हाट इज दिस डोपामिन डूइंग? सो बेसिकली लर्निंग, एंटिसिपेशन, रिवॉर्ड, और भी बहुत ड्रग एडिक्शन में भी काफी हद तक इन्वॉल्व है डोपामिन का एक्टिविटी। सो बीट इंक्रीज और डिक्रीज और स्टेबिलिटी, बट इट इज इन्वॉल्व इन ये सब चीजों में भी। सो या, that is what dopamine, it's still, it's just not that actually, अभी भी बहुत ज्यादा वर्क चल रहा है, मेरा खुद का काम भी डोपामिन से ही रिलेटेड है। सो या, डोपामिन इज अ वेरी नॉटी मॉलिक्यूल, हमें नहीं पता वो और क्या क्या कर सकता है, क्या क्या करता है। इट इज ऑल्सो, ओ, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मूवमेंट। सो नॉट जस्ट दैट, व्हेन यू मूव तभी भी डोपामिन रिलीज होता है। सो योर डोपामिन फंक्शनिंग वेरी, ऑफ कोर्स, मतलब इट डिपेंड्स ऑन विच रीजन इट इज releasing in. So there are these specific brain regions which are involved in just motor output या movement या जो भी है, direct, indirect, voluntary, involuntary movements, वहां पर डोपामिन का नॉर्मल फंक्शनिंग विच इज नॉट इन योर कंट्रोल। अगेन, जो बाकी चीजें भी जैसी है, रिवॉर्डिंग, रीइंफोर्समेंट, या फिर तुम्हारा लर्निंग, एंटिसिपेशन, ये सारी चीजें वो अलग ब्रेन रीजन है। तो वहां पे डोपामिन जब रिलीज हो रहा है, या फिर या रिलीज हो रहा है, तो दैट मेक्स यू फील, मतलब वही, इट, हम बात कर रहे थे डोपामीन डिटॉक्स की। तो या, बेसिकली जैसे एक स्टैट में पढ़ रहा था और मैं हम्म, बहुत बार इसकी बात करता हूँ। हम्म, एक नॉर्मल इंसान कितनी बार अपना फ़ोन अनलॉक करता है? हम्म, तो देर इज़ अ रेंज, आई थिंक 150 से लेकर, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, मैं यहाँ पर नंबर डाल दूंगा इन अ डे। कि इन अ डे, यस। लाइक मुझे, हमें पता भी नहीं चलता है कितनी बार हमारा ध्यान, बस हमारा हाथ ऐसे उठता है और हम या, फ़ोन को अनलॉक करते या, हैं या, और देखते हैं कि कुछ नया नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया। जैसे या, वो पैकेज की बात आपने करी अमेज़ॉन या, का, तो ऐसा ही कुछ और आया कि नहीं, किसी ने हमारा या, फ़ोटो लाइक या, किया कि नहीं, कितने, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो या, बहुत सारी चीज़ें हमने मतलब हम सबकॉन्शियसली ऐसे उठा लेते हैं फ़ोन और करते हैं। तो या, इट्स ऑल रिलेटेड टू डोपामीन, राइट? कि या, हम चाहते हैं कि हमें एक जैसे बेसुआ बेसुआ कल्याण रथ, एक कॉमेडियन, आई डोंट नो इफ़ यू नो हिम। आई उनका थिंक, एक बट या, प्लीज़, अगर आपको हम्म, नहीं सुना ना तो उनका ज़रूर बिट ज़रूर सुनिए, ही इज़ हम्म, ब्रिलियंट। हम्म, तो वो बोलते हैं कि जब तुम सुनने आते हो मुझे, तो इसका मतलब तुम हंसने आ रहे हो, राइट? राइट, तो बेसिकली तुम दुखी हो और हर जोक के बाद बोल रहे हो कुछ दे दो दे दो दे दो, हंसी हंसी आनी चाहिए, आई हंसी आनी थिंक, चाहिए। या, और या, फिर वो हर 5 मिनट बाद तुम्हें चाहिए डोपामिन अपने अंदर। तो बेसिकली वही बात हमारे अंदर है कि हमको राइट, चाहिए हर 5 मिनट के बाद कि हम बहुत दुखी हैं अंदर से, और हमें चाहिए कि कुछ ना कुछ मिल जाए इधर उधर से। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि हम सबका जो विथ कांस्टेंट इनफ्लो ऑफ डोपामीन ऑल थ्रू द डे, क्योंकि हमारा फ़ोन, हमारी टीवी स्क्रीन्स, मोबाइल या, स्क्रीन्स, 10 तरह के डिस्ट्रैक्शंस हमारे आसपास, तो या, हमारा जो बेसल डोपामीन लेवल है, हम्म, जो आज से 5 साल 10 साल पहले हुआ करता था, वो उससे कहीं ज़्यादा ऊपर हो चुका है। तो हम्म, हमें उस बेसल डोपामीन लेवल को, क्योंकि इतना तो है ही हमारा अंदर, जो पहले 5 साल पहले इतना था, या, तो अब इतने से ऊपर होने पर ही हमें कुछ लगता है कि हाँ कुछ हुआ है। इससे ऊपर तो फिर लगता है कि फिर इस इतना बेसल हो जाता है थोड़े टाइम बाद। फिर तो क्या ऐसा सच में होता है कि 5 साल 10 साल पहले या उससे भी पहले की बात कर लेते हैं, जब इतना इतना सेल फोन या इतना सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा रोल था नहीं, और हमारा जो डोपामीन था वो जनरली ऐसा होता था कि दिन में 1-2 बार ऐसा कुछ हो रहा है कि कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ दिख रहा है, तो हमारे को कुछ खुशी मिल रही है। पर आज तो हर 5 सेकंड में हमें चाहिए, राइट? तो क्या हमारा बेसल डोपामीन लेवल
ऊपर हो चुका है 5-10 साल के पहले, या मतलब इफ़ यू हैव एनी डेटा टू बैक, और इफ़ यू हैव एनीथिंग एल्स टू, एनी रिसर्च पेपर कि ऐसा क्या होता है या फिर नहीं? ऑनेस्टली अब तक मैंने जितना exposure पाया है in terms of dopaminergic studies, given that I myself is actively working in this field, I have not heard of anything as such कि levels increase हुए हैं dopamine के, क्योंकि it's I think that's not how it functions as much as I understand. क्योंकि एक एक नॉर्मल ये है, ठीक है, एक नॉर्मल फंक्शन है कि अगर तुम कुछ एंटिसिपेट कर रहे हो तो डोपामीन रिलीज हो रहा है. इफ योर मूवमेंट इज फाइन, डोपामीन रिलीज हो रहा है. इफ यू गेट रिवॉर्डेड, डोपामीन रिलीज हो रहा है. सो रिवॉर्ड कैन बी एनीथिंग, मे बी यू वन अ प्राइज, लॉटरी, मे बी फूड, सेक्स, कुछ रिक्रिएशनल ड्रग्स अगर तुमने कर लिए. सो रिवॉर्डिंग एनीथिंग रिलेटेड टू such kind of abstract reward भी उसमें आता है actually, not Yeah. just like physical reward. Abstract reward जैसे किसी ने तुमको compliment कर दिया which you were not expecting, अचानक से कोई आके oh you look so nice today, या ऐसे कुछ, या फिर oh I like your shirt, जो हमारे यहाँ नहीं होता, ज्यादातर यहाँ बहुत होता है. so Yes. Yes. so yeah, कोई ऐसे random अगर कोई compliment मिल गया तो वो भी एक abstract, like एक reward ही है वो, right? That's like an abstract way of reward. तो इन सब में that is like just a regular way how it would function. I personally have not read anything as such कि dopamine levels, basal levels या फिर जो baseline है वो increase हुआ है या ऐसा ऐसा कुछ, क्योंकि the way it functions is a neuron is there, कुछ हुआ, dopamine, ये dopaminergic neuron है, कुछ हुआ, and then it releases dopamine, it goes back to normal. So that's how ये जो एक बेसिकल एक्शन पोटेंशियल होता है वैसे रिलीज हो गया, इट गोज बैक टू नॉर्मल. बट देन वो कुछ चीजें मतलब जैसे रहते हैं कि मतलब ऐसे बर्स्ट 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 ऐसे भी डोपामिनर्जिक ये रहते हैं. अब मुझे याद नहीं आ रहा है, फेज एक रहता है, तो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल ऑल दैट इंफॉर्मेशन एट दिस पॉइंट इन That's टाइम. okay. बट या What I'm asking is कि जैसे आज के मैं बोल रहा हूँ, मैं पुरातन काल का आदमी हूँ. या मैं आज से उस समय की बात कर रहा हूँ जब हमारे पास सोशल मीडिया का या या कांस्टेंट इन्फ्लक्स नहीं था. आज या से आई एम लेट्स से करेक्ट. 2010 की बात कर लेते हैं. हम्म. 2010-11 में आई डोंट रिमेंबर कि कोई सोशल मीडिया का, फेसबुक वाज देयर, या बट फेसबुक का एक्सेस भी मोबाइल फ़ोन में लोगों के पास नहीं था. या बहुत कम लोगों के पास था. या तो उस समय से आज की बात अगर हम करें, कंपेयर करें विज़ दो लोगों को, तो आज की तारीख में अगर डोपामिन लेवल हमारे कॉन्स्टेंटली, जैसे आप बोल रहे हो कि कांस्टेंट इन्फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, या मतलब ऑलमोस्ट एवरी वेकिंग आवर हम ये करते ही हैं या कि फ़ोन उठाते हैं या कुछ खाते हैं या कुछ पीते हैं या या सिगरेट या जो 10-12 चीज़ें आपने बताई वो हम करते हैं कॉन्स्टेंटली. हमें या चाहिए कि बोर नहीं होना है, कुछ ना कुछ या करके हमें वो जो डोपामिन इन्फ्लक्स या मिलता रहे अपनी बॉडी. तो वो मैं बोल रहा हूँ. yeah, तो I was getting to that point. तो basically there's no baseline as such. I think तभी अगर social media नहीं था तो भी alcohol, cigarette ये सब तो था ही. So there were other things that people probably were doing which was still releasing dopamine in them, right? ओके. So अभी जरिया अलग है शायद. Now we are living in this digital world जहाँ पे we are making posts. तो maybe वो फ्रीक्वेंसी बढ़ी इसलिए देयर इज होल अनदर डिसऑर्डर एडिक्शन में जो which has to do with your social media addiction. तो वो मतलब क्या कहते हैं उसको यार, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर. तो मतलब वो विद इन इटसेल्फ देयर इज वन दिस डिसऑर्डर दैट इज फॉर्म्ड इन, मतलब एडिक्शन के अंडर आया है, एक चीज ऐड हुआ है. सो इसके पहले भी अल्कोहल एडिक्शन था, ड्रग एडिक्शन मतलब कोकेन वोकेन जो भी अलग, हेरोइन एडिक्शन या फिर Oh yes. ओपियोइड्स, लेट्स इन जनरल ओपियोइड्स था, फिर कोकेन था, फिर और भी अल्कोहल एडिक्शन तो अभी भी है प्रॉब्लम, बट आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट सी इट एज अ प्रॉब्लम. बट या Yeah. 100%. 100%. या सो आई जस्ट थिंक कि ये एक और एक नया चीज ऐड हो गया है, बट द वे वी यूज टू फंक्शन इज maybe a little bit more evolved than previously. But again, I really think वो basal
इन बेसलाइन का इंक्रीज होना इज नॉट समथिंग दैट इज एक्चुअली हैपनिंग. ओके. It's just that new things have been added, or why I think I'm repeating myself, but yeah, baseline ऐसा कुछ ये उसमें increase नहीं हुआ is what I think, ओ because गुड टू नो. गुड yeah. टू नो, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को ऐसा सुना है. और ये मैं, क्योंकि मेरा एजुकेशन उस तरफ का नहीं है. आई Mm-hmm. तो मैंने पर बहुत लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है सोशल मीडिया पर कि बेसल डोपामीन लेवल जो है वो बढ़ गए हैं ओवर द ईयर्स. अगेन, आई डू नॉट क्लेम टू हैव दिस नॉलेज कि ऐसा जैसे आप बता रहे हो. आई हैव टू trust you what you are saying because you are expert in this area. Much more you know, much more than I do. तो इसलिए तो इट्स गुड टू नो एक्चुअली कि शायद इसी वजह से पर हाँ, हम एडिक्शन की बात भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर. Mm-hmm. एडिक्शन इज़ डिफरेंट थिंग. जैसे एक मीम देख रहा था मैं पहले. Mm-hmm. आई डोंट नो, आपने भी देखा होगा कि जैसे एक लड़की है, उसको उसकी मम्मी बोल रही है कि 1950 में जब देखो हर वक्त न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर. Yeah. फिर उसके बाद 1970 आता है तो जब देखो रेडियो रेडियो रेडियो. Radio. Yeah. कुछ और नहीं है तुम्हारे पास. फिर और ज़्यादा आता है जब देखो टीवी टीवी टीवी. फिर जैसे जैसे करके वो Yeah. आते हैं सोशल मीडिया पे. जब देखो मोबाइल Yeah. फ़ोन, जब देखो मोबाइल फ़ोन, ऐसे Yeah. करके फ्यूचर में जाते हैं. Yeah. तो थिंग्स हैव ऑलवेज बीन देयर. Been there. Yeah. हमारे जो पेरेंट्स थे वो टीवी देखा करते थे, हम Yeah. मोबाइल देखते हैं. तो Exactly. इट्स द सेम थिंग, राइट? Yeah. वन थिंग Yeah. हैज रिप्लेस द अदर थिंग, बट Yeah. Exactly. इट्स द सेम थिंग. Exactly. Yeah. Just एक मतलब वही कुछ substitution आ जा रहा है for something that existed previously. The example that you gave is absolutely amazing at this point, like to relate in a very better way, in a much better way. But yeah, मुझे वही लग रहा है, मतलब शायद हुआ भी होगा कुछ evolutionarily. I have not probably looked into it, but as much as my knowledge is concerned, I don't really think कि ऐसा basal level increase हुआ है. But I would like to look into that as well. But Okay. yeah. श्योर, आई Yeah. ऑल्सो लुक इनटू दैट कि क्या Yes. ऐसा, क्यों ऐसा वो लोग बोल रहे हैं Yeah. कि क्या Yeah. ऐसा कोई स्टडी हुई है कि नहीं हुई है. Right. और ऑफ Yeah. कोर्स वी बोथ ऑफ अस, एंड आई स्पीक फॉर काजोल एज वेल, वी डोंट क्लेम टू बी यू नो कि हमें सब कुछ पता है. ऑफ सर्वज्ञानी. कोर्स यू वुड आल्सो से दैट, राइट? क्योंकि हम में से कोई नहीं बोलता कि हमको सब कुछ पता है, बट वी आर Correct. लर्निंग एंड इवॉल्विंग Yes. एज वी गो. Yes. तो जैसे हम इसकी बात करते हैं तो उसी से एडिक्शन की बात आती है कि Yeah. जैसे, और यहाँ पर हम ड्रग एडिक्शन और Yeah. अल्कोहल एडिक्शन उसकी बात भी कर सकते हैं. बट फिलहाल जो मोस्ट टाइप ऑफ एडिक्शन जो कह सकते हैं वो Mm-hmm. मोस्टली मोबाइल फ़ोन एडिक्शन है, जो बच्चों में भी है. Mm-hmm. तो उसी क्योंकि वो सबसे एक्सेसिबल है. तो जैसे हमने पहले बात करी कि पहले कुछ और था, फिर बाद में कुछ और, पर एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई ना. कि Yeah. पहले Yeah. लोगों के पास टीवी देखते थे तो 1 घंटा देखते थे, 2 घंटा Yeah. देखते थे. Mm-hmm. पर अब मोबाइल फोन्स तो 24 घंटे हैं. Yeah. पीपल आर ऑल्सो सेक्रीफाइसिंग देयर स्लीप फॉर मोबाइल फोन्स. Mm-hmm. Mm-hmm. तो राइट, तो दैट एक्चुअली माइट हैव लेड टू एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया Yeah. और स्लैश मोबाइल फोन्स, राइट? Mm-hmm. Mm-hmm. तो उसके बारे में क्या कोई ऐसा डेटा है हमारे पास, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हम बता सकें लोगों को कि how they can actually get rid of it if they are experiencing any kind of addiction with respect to mobile phones specifically I'm talking about. Yeah, so as much as I am aware, I think ये सब में ज़्यादातर therapies are really a good way to deal with this thing. क्योंकि therapies में obviously there are like multiple different therapies, cognitive behavioral, that is basically the restructuring the way you think about things, या फिर Yeah. कुछ habits में भी कैसे बदलाव लाने हैं. So ये सारी चीज़ें बहुत proactively you have to engage in. That is again about unlearning things. So the way you have trained your brain, now you have to like train your brain to not do that. So it is like a process of again unlearning and relearning. But when it comes to addiction, I've not read as much in terms of internet addiction specifically, क्योंकि मेरा drug related ज़्यादा and that's what I study. Okay. But the basic mechanism of addiction is the malfunctioning of your dopaminergic release. So उसमें ये होता है, so what
रिसर्च हैव फाउंड दैट एक एक नॉर्मल रिलीज रहता है हमारा जो बेसलाइन, हाँ उसको बेसलाइन कह सकते हैं, जो नॉर्मल हमारा रेगुलर रिलीज है डोपामीन का, फोन देखने पे या फिर इंटरनेट यूज करने पे एंड देन कीपिंग इट बैक, जो एक नॉर्मल सर्ज होता है, उससे वो उनका बढ़ जाता है फॉर द पीपल हु आर एडिक्टेड। ठीक है, सो हमारा जो बेसलाइन है, उनका बेसलाइन में भी दैट इज देयर बेसलाइन हैज इंक्रीज्ड टू अ हायर लेवल। तो अभी नाउ टू नॉर्मलाइज दैट, टू फील नॉर्मल, दे कीप यूजिंग इट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एडिक्शन, इन जनरल एडिक्शन, जो भी चीज का एडिक्शन है, बस टू फील नॉर्मल। पहले तो मजे आ रहे थे, डोपामीन, ऑफ कोर्स उस टाइम पे हम वो नहीं सोचते कि डोपामिन रिलीज हो रहा है, बट या मजे आ रहे हैं, आई वांट टू डू दिस मोर, आई वांट टू डू दिस मोर। सो ये जो वांट फैक्टर है कि यार अच्छा लग रहा है, सो फ्रीक्वेंटली डूइंग इट, इवेंचुअली व्हेन इट गोज इनटू लाइक क्रॉनिकली तुम बहुत ज्यादा करते हो वो चीज, इट माल फंक्शंस योर डोपामिनर्जिक सर्किट्स, जहां पे अभी तुम्हारा जो बेसलाइन नॉर्मली था दैट इज नाउ इंक्रीज्ड, बेसिकली टॉलरेंस लेवल बढ़ गया, हम कहते हैं ना, सो टॉलरेंस बढ़ गया। now your baseline is a little high, so if you जो normal level पे आने की कोशिश करोगे, so you'll feel more depressed, withdrawn, ऐसा अजीब लगेगा, like obviously sadness या फिर वो negative emotions जो होते हैं, those kick in जब you don't feel when you don't do that thing। तो अभी तुमको जो जो तुम्हारा बेसलाइन हुआ, यू नीड टू मेंटेन दैट टू जस्ट फील नॉर्मल, तो वो नॉर्मल फील करने अभी, दैट इज वेयर डिपेंडेंस इज कमिंग इन द पिक्चर, राइट? यू आर नाउ डिपेंडेंट बिकॉज यू नीड टू फील नॉर्मल, एंड नाउ मतलब ऐसे ही इसमें फिर बाद में डोपामीन का वो जो ओवरऑल फंक्शनली डिपेंडेंसी बाद में इसमें एडिक्शन में ही कन्वर्ट हो जाता है, व्हेन इट इज लाइक सो सीवियरली डैमेज्ड कि अभी उसको अंडू करना, वही हम ढूंढ रहे कि कैसे करना चाहिए इसको अंडू। सो व्हेन इट गोज to the point where you are addicted to something, it is really problematic, but uh, I cannot really speak about internet addiction specifically, but ये बाकी वाले addictions के मामले में, yes, we are still looking for it, we're still trying to figure out क्या कैसे कर सकते हैं। Is the mechanism same, like when we are addicted to something, let's say a drug, versus addiction to something, eating sweet, or social media addiction? Is the mechanism same or different? What do you think? So I think it's mostly the same because it involves similar brain regions. तो अभी उसमें ऑफ कोर्स तुम्हारे जीन डिफरेंस हो सकता है, जेनेटिक डिफरेंस, मतलब हर चीज हर जीन पे नहीं अटैक करेगी, या फिर एवरीथिंग इज नॉट हैव टू डू विथ दैट वन स्पेसिफिक जीन, दैट मल्टीपल जीन्स जो हमको पता भी नहीं है शायद। सो कुछ जीन का म्यूटेशन होने के बाद कुछ और इफेक्ट आए, ऐसा भी हो सकता है। सो आई एम नॉट वेरी, आई एम श्योर दैट बेसिक सेम ही है, क्योंकि रिवॉर्ड पाथवेज तो वही एक्टिवेट होने वाले तुम्हारे ब्रेन में हर रिवॉर्डिंग चीज के लिए, बट देन द इंटेंसिटी ऑफ द एडिक्शन डिपेंड्स ऑन व्हाट योर thing that you're addicted to is it making sense? Yeah, This yeah, is what I think, absolutely, yeah, absolutely, absolutely. yeah, तो अगर हम इससे थोड़ा सीवियर एडिक्शन पे जाएं, mm-hmm, तो वहाँ पर आपका जैसे काम है, आपने बोला कि जैसे ड्रग एडिक्शन की बात कर रहे हैं, तो yeah, ड्रग एडिक्शन भी बहुत अलग अलग प्रकार का है, और yeah, इसमें अल्कोहल एडिक्शन है, yeah, निकोटीन एडिक्शन है, तो yeah, ऑफ कोर्स दे आर लाइक मोर सीवियर टाइप ऑफ एडिक्शन विच mm-hmm, ऑफ कोर्स माइट टेक योर लाइफ, और माइट जस्ट ruin your life mm-hmm, इन जनरल। तो उसके बारे में आप क्या, मतलब जैसे आपका काम है, तो आप क्या काम कर रहे हो उसके बारे में अगर आप बता mm-hmm. सको थोड़ा तो। Yeah. Oh, I forgot to mention one thing. पहले पहले वाले क्वेश्चन का, सॉरी जो श्योर श्योर। इंटरनेट एडिक्शन के बारे में, या फिर मतलब जो नॉन मेडिसिनल थेरेप्यूटिक मेजर्स जो हम ले सकते हैं, जो ओ थेरेपी या। तो आई मेंशनड ओनली, जो काउंसलिंग सर्विसेज है जो हम ले सकते हैं, प्रॉपर साइकोथेरेपी, बट उसके या। अलावा भी एंगेजिंग मोर इन विथ यू नो the real people, spending more time with your friends, spending more time with family, doing things that need your um,
जिसमें ये सब चीजें ना इन्वॉल्व हो. सॉरी, ये बस मेरे दिमाग में आ गया. आई थॉट आई वुड जस्ट फॉरगेट, तो आई थॉट इट विल बी अ गुड इनपुट. श्योर. ऑल्सो डिटॉक्स भी बाकी है, तो हम वो बात करेंगे. हाँ. डोपामिन डिटॉक्स का. या सो श्योर. श्योर. yeah, so there are these measures that you can actually proactively take. So here's where the detox thing actually comes in. Although मतलब उस ये जो dopamine detox terminology है, that was given by this doctor from he's a psychiatrist, I guess, California से, Cameron Cefa or something. So this guy gave it out. उसका मतलब point ये था of telling this whole thing. मतलब dopamine detox, the point that he wanted to put out was, it is like, controlling for unhealthy habits, which you actually explained. That's what the whole main ये था. But फिर लोगों ने perceived it in a very wrong manner कि हम dopamine control कर सकते हैं, which you cannot really. It is very involuntary process. सो एंड there's मतलब अगर तुम बहुत लिटरल वे में देखोगे डोपामिन डिटॉक्स, इट कैन नॉट हैपन. जैसे मैंने, oh my God, I'm so sorry. जैसे जैसे इट्स मैंने ओके. बताया, डोपामिन की इन्वॉल्वमेंट क्या क्या चीज़ों में है, फ्रॉम मूवमेंट, एडिक्शन, मूवमेंट, लर्निंग, रिवॉर्ड, एंटिसिपेशन, ये सारी चीज़ें. सो ये सारी चीज़ें, अगर तुम डोपामिन डिटॉक्स करते हो, लेट्स से हाइपोथेटिकली डिटॉक्स किया, तो इट माइट अफेक्ट यू इन मल्टीपल वेज. बट वो तुम वॉलंटरीली कर ही नहीं सकते, क्योंकि you just can't. It is happening which is not in your control, which is happening in your brain. So dopamine is released in motor movement. It is released in other things. It is going to release in any way. Agar tumne maybe stopped using the social media to detox dopamine, you're still going to do something else which will involve dopamine release. You know what I mean? या या So या yeah, जस्ट detox जस्ट is, टू बी yeah, जस्ट टू बी क्लियर, yeah, जैसे पहले हम डोपामिन डिटॉक्स की बात कर रहे थे, yeah, तो हम पहली बात तो एडिक्शन की बात टेक्निकली नहीं कर रहे थे वैसे तो. yeah, पर मान लीजिए कि एक ऐसा इंसान हूँ मैं जो जनरली सोशल मीडिया इतना यूज़ नहीं करता, yeah, बट 7-10 दिन से यूज़ कर रहा है. yeah. ठीक है, मेरा एग्जांपल लेते हैं क्योंकि Hmm. और किसका क्यों लें. तो 7-10 दिन से मैं यूज़ कर रहा हूँ और मेरा जो ओवरऑल सोशल मीडिया यूसेज है वो बढ़ गया है. तो Yeah, मैं क्या करूँगा, और डोपामिन डिटॉक्स को मैं उसी रेस्पेक्ट में बात कर रहा था कि मैं yeah, उससे डोपामिन नहीं लूँगा yeah. बेसिकली. तो मैं अपना फ़ोन क्या करूँगा, लिमिट कर दूंगा. जैसे मैंने वो ऐप की बात बताई Yeah, कि मैं उस ऐप को मैं लॉक कर दूंगा, yeah, एक तरह से सोशल मीडिया जेल बना दूंगा उसको, कि right. भाई उस दौरान जो जो मेरे काम के जो फोकस आवर होते हैं, जो उसको मैं बिल्कुल ब्लॉक कर दूंगा. मतलब वो Yeah, पॉसिबल ही नहीं मेरे लिए खोलना मोबाइल फ़ोन yeah, पर. वो yeah, उस तरीके से मैं बोल रहा था कि yeah, डोपामिन मैं yeah, yeah. लूँगा दूसरी चीज़ों से. जैसे मैं कोई Yeah, किताब पढ़ूंगा तो मैं yeah, मुझे उससे डोपामिन मिलेगा, right. वेल एंड गुड है. बट एटलीस्ट मेरा जो काइंड ऑफ टेम्परेरी एडिक्शन है फ़ोन Mhm. से, वो मेरा कम हो जाएगा. बस वही है, Correct. Yeah, यही उसका ऑब्जेक्टिव है. exactly. That's how this doctor wanted to, explain that. But then उसकी idea अलग से चली गई. So this is मतलब वही basically rechannelize your way of pleasure, I guess. यस. Uh, मतलब जो जो अनहेल्दी एस्पेक्ट से यू कैन मूव इट टू अ हेल्दी एस्पेक्ट, जैसे वर्किंग आउट वगैरह, या फिर मीटिंग पीपल, लाइक सोशलाइजिंग मोर देन जस्ट स्टिकिंग योर फोन इन योर हैंड एंड स्टिकिंग योर विजन इन द फोन. तो उससे बेहतर दिस. सो आई वुड कॉल इट रीचैनलाइजिंग योर pleasure, या release, dopamine release, instead of detox. Yeah, the way he meant probably was like metaphorical, if that's correct. But yeah, anyway, yeah, I just wanted to like not miss that point, इसलिए मैंने बोला. दैट इज़ ट्रू. और Yeah. डिटॉक्स वाला जो वर्ड है ना, वो वैसे Yeah. भी मुझे बहुत नापसंद है. डिटॉक्स वाला वर्ड मैं बहुत ज़्यादा ठोक बजाकर और बहुत केयरफुल यूज़ करना चाहूँगा, Correct. क्योंकि Yeah. बॉडी का डिटॉक्स हो या डोपामिन डिटॉक्स हो, वो फैड है, वो मतलब बकवास एकदम. इट डज नॉट वर्क. बट जस्ट फॉर द वर्ड Yeah. यूसेज हम वो Yeah. वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ना Correct. कि लिटरल सेंस में Yes. कि जो भी डिटॉक्स है वो डज नॉट वर्क. Yeah. बट हाँ, हम Correct. रीचैनल कर रहे हैं उसको, अपने Yeah. डोपामिन रिलीज को अलग Yeah. प्रकार से. बस वही है.
बट करेक्ट, बट आप करेक्ट। ये देखो ना, जैसे फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स की बात मैंने करी हुँ, अपने पर्सनल केस हुँ। में, कि जैसे मैं देख रहा हूँ अभी मैं अरशद वारसी का एक इंटरव्यू देख रहा था, जब मैं अगेन वो कॉन्टेक्स्ट की बात वो करूँ, इसके साथ समदीश के साथ, अनफिल्टर्ड, या। समदीश, या, आई लव हिम, समदीश। मी टू। आई थिंक द ओनली हिंदी पॉडकास्ट आई वॉच इज समदीश's पॉडकास्ट, बिकॉज दैट इज लाइक वेरी रियल एंड या, वेरी रॉ। तो या, उस पर अरशद वारसी का मैं देख रहा था, और वो सेम वो चीज़ का, और अगेन वो पॉडकास्ट सबको ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि अगेन मोस्ट पीपल लाइक अरशद वारसी लाइक आई डू, बट वो जो बात कही गई है उसमें बहुत अच्छी बातें करी गई हैं। हुँ। तो वही है, जैसे हाँ, मैं कहाँ पे बीच में मैं इधर उधर निकल जाता हूँ, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ सेम, मी। सेम। मैं बात क्या कर रहा था, मैं ये बात कर रहा था या, एडिक्शन की बात, उसमें या, थोड़ी बहुत कही गई थी कि भाई कैसे इंसान अपना एक स्टार्ट करता है दिन, कि हाँ चलो मैं 5 मिनट के लिए अपना ब्रेक ले लेता हूँ या, इंस्टाग्राम पर, और वो या, 2 घंटे निकल जाते हैं उसमें या, आपके, कि या, आपने या। एक रील देखी, दूसरी रील, और मेरा तो काम भी इस कुछ चीज़ अनफॉर्चुनेटली, आई डोंट नो व्हाई आई यूज़ दैट, बट उसमें रील्स ढूंढना है मेरा काम, इस तरह की जो या, मैं डिबंक कर सकूं। तो या। उसमें मेरे को टाइम लगता है, और पर आजकल क्या होता है, बहुत लोग दे देते हैं रील्स को, तो मेरे को ज़्यादा करना नहीं पड़ता, बट रिगार्डलेस, और हुँ, मैं ऐसे कह रहा हूँ, बट मेरा खुद का टाइम भी वेस्ट होने लगा है, तो इसीलिए मैंने वो स्पेसिफिकली चूज़ किया। या, ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हम कंट्रोल में हैं सब कुछ, बट हम भी एडिक्शन के शिकार होते जा रहे हैं उस चीज़ हुँ, को, हुँ। तो इसीलिए या, मैंने उस सारी टर्मिनोलॉजी को यूज़ किया और सभी चीज़ को। या। हुँ, हुँ। या तो अगेन नहीं, आई आई जस्ट जस्ट वांट नहीं, कंप्लीटली कोई बात स्किप्ड नहीं। माय पॉइंट। कोई बात नहीं. You were just talking about the detox usage of that word, but that's fine. I just wanted to like point out to people who are watching कि ये हम भी मतलब not exactly meaning the literal meaning of detox, क्योंकि there's no evidence first of all for dopamine detox, और वो हो भी नहीं सकता technically. So yeah, but what we meant was all of that we discussed. हाँ, तो मुझे याद आया कि जैसे नेटफ्लिक्स है फॉर एग्जांपल, तो Mm-hmm. नेटफ्लिक्स पे मैं जैसे जैसे अरशद वारसी ने बोला, Mm-hmm. और मैं भी ऐसे ही करता हूँ, जब मुझे बहुत Mm-hmm. अच्छा ऐसा लगता है, मैं फ्रेंड्स देखने लग जाता हूँ, और Mm-hmm. जब मुझे बहुत ऐसा लगता है कि यार हाँ, आई एम नॉट फीलिंग अप टू द मार्क, तो मैं Mm-hmm. देखने लग जाता हूँ, और मैं कम से कम 200-300 बार एक एक एपिसोड को, वो भी मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, एक एक एपिसोड को देख चुका हूँ, बिकॉज आई Wow. फील गुड, मुझे Yeah. अच्छा Yeah. लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, मैं उनसे बात कर रहा Yeah. हूँ। आपके हिसाब से क्या आपको भी ऐसा सिचुएशन होता है, बिकॉज यू आर वर्किंग इन दैट एरिया, तो आप हम क्या कर सकते हैं इसको दूर करने के लिए, अदर देन दीज एप्स और फोन जेल्स और थिंग्स लाइक दैट? Mhm. क्या ऐसा कुछ है जो हम कर सकते हैं अपनी हैबिट्स को चेंज करने के लिए? ऐसा अभी फिलहाल on top of my head the idea is, first of all, really deciding that you actually want to cut this down. Given that that is not an addicted thing, क्योंकि addiction तुम कितना भी decide कर लो, it is like your brain is messed. So yeah, I'm not talking about addiction, okay? I'm talking about this habitual response जो हमारा यस। है. अभी भी मतलब आपसे बात करते करते my phone is vibrating. स्मार्ट वॉच अभी पिक्चर में आ चुकी है, सो या। वो यस। ये वाइब्रेट हो रहा था, मैं ऐसे देख रही हूँ कि क्या है, सो आई हैड टू लाइक कॉन्शियसली टेल माई सेल्फ कि नो, स्टॉप, डोंट डू इट, like focus on one thing what that you're doing. So जैसे यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टू एक्टिवली थिंक कि भाई मुझे ये नहीं करना है, आई हैव टू स्टॉप, लाइक एटलीस्ट फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम आई नीड टू स्टॉप. या फिर जैसे अंकित हमारे कहते हैं कि जो इंसेंटिव वाला पार्ट है, लाइक रिवॉर्ड योर सेल्फ, रिवॉर्ड योर सेल्फ. जैसे लेट्स से आई एम नॉट गोइंग टू यूज माई फोन फॉर अनदर आवर, इंस्टेड आई वुड लाइक वॉच अ मूवी. मतलब इंस्टाग्राम में नहीं इन्वॉल्व होना है, सो आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी. अगर मतलब वो नहीं है तो मे बी जस्ट सी फ्रेंड्स है क्या, फ्रेंड्स के साथ मे बी हैंग आउट या समथिंग एल्स, anything else than that. Maybe read a book, read a book. Oh my God, that's such an amazing thing. Read a book. So एंड read. एक्चुअल फ्रेंड्स, नॉट द शो फ्रेंड्स। Yes, actual real human beings, like mingle with those. If you have a pet, maybe play with your pet for and just take a walk, work out. There are so many amazing things that you can do when you're not doing स्पेंड टाइम one. विथ योर फैमिली। Spend time with your स्पेंड family. That was on top.
दिमाग में था, निकला नहीं मुँह से, आई डोंट नो व्हाई। No, I support family times, okay? You guys need to spend time. They are really nice human beings. So, they, yeah. they are really nice human beings. Good, good. So Yes. so yeah, yeah, just appreciate other different things. तो बहुत सारी चीजें हैं. So all you need to do is, अभी ये सारे मैंने incentives या reward के टर्म्स में पता है कि if not this then this. Mm-hmm. सो अगर Yeah. सोशल मीडिया पे तुम्हारा ये सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे अगर यूट्यूब पे कुछ अच्छा देख रहे हो, ऑफ कोर्स आई वुड लाइक जैसे ये पॉडकास्ट Mm. ये तो आई देखो। वुड मैं इसमें पता है क्या बोलता हूँ, या क्योंकि फिर क्या होगा ना, आप बोलोगे कि आप अपना तो प्रमोट कर रहे हो, यू आर जस्ट, तो मैं क्या बोलता हूँ या कि पॉडकास्ट आप देखो मत, आप बस सुनो, सुनो। एग्जैक्टली, आप अपना काम करते रहो और इसको चला दो एग्जैक्टली, साइड में, क्योंकि दैट्स या व्हाट आई डू एज वेल। मी मैं टू, देखता या नहीं हूँ, मैं जो पॉडकास्ट सुनता हूँ लेक्स फ्रीडमैन के या समधीश भाटिया बैक इंडिया में, तो मैं या कभी भी देखता नहीं हूँ। करेक्ट, देखने का क्या है उसमें, बस सुनना है बस कि एग्जैक्टली, और उसको सुनो 1.25 या 1.5 एक्स पर। ये भी मैं आपको या बता दूं, और मैं या अपने मेरे पॉडकास्ट को भी अगर आप सुनना चाहते हैं ठीक से, तो 1.25 इज़ द या परफेक्ट स्पीड जिस पर आप सुन या सकते हैं, या और उससे आपका टाइम भी बचेगा और आप एग्जैक्टली, कॉन्वर्सेशन को भी अच्छे से समझ पाएंगे, तो वो या चीज़ है। या एग्जैक्टली. मैं भी मतलब आई यूज्ड टू लिसन टू यू, अंकित, ऐसे किचन में साइड में चल रहा है और मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ. सो आई एम डूइंग लाइक मल्टीपल थिंग्स, गेनिंग नॉलेज एंड या कुकिंग. सो या साइमल्टेनियसली चीजें हो रही है. सो ये बस एक्टिव एफर्ट है ये. यू हैव टू लाइक स्ट्रांगली decide and put efforts into that. And ये सारी चीजें are very much doable, right? ऐसा भी नहीं कि नहीं यार नहीं हो पाएगा या. So yeah, again coming back to the reward point, reward yourself with something else. ठीक है, एक घंटे बाद when I do something else than social media, when I come back maybe I'll just like spend 5 extra minutes on Instagram, maybe if that helps you. या फिर कुछ ऐसा चॉकलेट खा लूंगा, या फिर something else, like बट anything बट that rewards you. Yeah. डू यू थिंक कि इट वर्क्स? क्योंकि जैसे आपने बोला कि 1 घंटा मैंने बुक पढ़ा, अगर Yeah, फॉर yeah, एग्जांपल, तो मैं 5 मिनट इंस्टाग्राम पे जाऊंगा, तो 5 मिनट कभी 5 मिनट होंगे नहीं। वो मैं आपको बता रहा हूँ, yeah, वो yeah. 5 मिनट वुड लीड टू 1 आवर, 2 आवर, Right, लाइक दैट। correct. Yeah, so that's what initially when you begin, you have to set those time frames थोड़ा rigidly, strongly कि भाई 1 घंटा तो 1 घंटा ही, उसके बाद मे बी आई विल वॉच. तो शुरुआत तो एटलीस्ट 1 घंटे से करो, एंड 1 घंटे से करो कह रही हूँ क्योंकि आधे घंटे में इट्स लाइक टू इजी टू सून. 1 घंटा के लिए वो मतलब इफ यू डोंट हैव इंस्टाग्राम हो तो 1 घंटा यूं ही निकल जाए. बट अगर यस। तुम 1 घंटा बुक रीडिंग बोल रहे हो तो मे बी यू वॉन्ट यू विल रियलाइज कि कितना टाइम लग रहा है 1 घंटा जाने के लिए. बट अगेन यू आर गेनिंग समथिंग गुड आउट ऑफ इट. सो विच इज ओ वाई या। आई एम थिंकिंग, मतलब मेरे थॉट के हिसाब से आई थॉट 1 घंटा शुड बी अ गुड टाइम टू स्टार्ट. बट यू कैन लेटर उसको बढ़ा के बाद में वो ऑटोमेटिक, वंस यू फॉर्म द हैबिट, वंस इट गेट्स इनटू योर डॉर्सोलाटोस्ट्राटम, it's automatic. So वाओ। yeah, getting there. मेरा भी एक फेज था ऐसा that I used to so much be on actively on Instagram, ये सब, या फिर बस मतलब फोन पे कुछ ना कुछ करना है, बट नॉट एनी हेल्दी स्टफ. ठीक है, बस यूं ही रील्स देखो या कुछ करो. बट देन एक टाइम ऐसा था कि आई लिटरली जस्ट लॉक्ड माई फोन इन 7 दिन के लिए. आई वॉज लाइक आई डोंट वांट टू यूज इट. बस ओ मम्मी के वाओ। पास मैंने वो ये लॉकर में रख दिया, मम्मी के पास कीज दे दी. एंड आई फेल्ट अमेजिंग बिकॉज आई स्पेंड सो मच टाइम विद माई फैमिली, फ्रेंड्स, नो डिस्ट्रैक्शंस. इट वॉज अमेजिंग. लाइक एक उसके बाद आई थिंक आई नेचुरली स्टार्टेड टू कंट्रोल दैट. मतलब एफर्टफुली कंट्रोल नहीं, बस वो कंट्रोल हो जाता था मुझसे कि अगर मैं फ्रेंड्स में बैठी हूँ तो आई एम नॉट लुकिंग एट माई फोन एनी मोर बिकॉज आई एम जस्ट लिविंग इन दैट मोमेंट विद दोज पीपल. या फिर फैमिली के साथ हूँ तो सेम. तो जब मैं अकेली हूँ तो मे बी आई वुड सर्फ इंस्टाग्राम बट नॉट टू लार्ज एक्सटेंट. मे बी लाइक स्विच ऑन टू रीडिंग अ बुक, या फिर रिसर्च. अभी तो रिसर्च पेपर्स आर अ थिंग फॉर मी that I have to read. No escape. ट्रू। But या yeah, दैट्स ट्रू।
Yeah, so Yeah. all of these, that's how I channelized it, uh, or re-channelized it. एंड बुक्स आर अमेजिंग एक्चुअली। जब आप किसी एक बुक की हैबिट में आते हो ना, जैसे आप 15-20 मिनट आधा घंटा जब पढ़ने लग Yeah, जाते हो ना, तो इट्स yeah. वेरी, फॉर मी एटलीस्ट इट्स वेरी Mm-hmm. डिफिकल्ट टू एक्चुअली स्टॉप। Yeah, मुझे कॉन्शियसली बोलना पड़ता है कि बस करो, अब कुछ yeah, काम पे ध्यान दे लो या कुछ और करो। exactly. तो या बट फ़ोन क्या है कि फ़ोन अनफॉर्चुनेटली काम फ़ोन पर होता है, तो या तो True. पुराने वाले ज़माने में ही चले जाएं, और जैसे विमो भाई करते हैं कि अपना एक डब्बा फ़ोन ले लिया जाए जिसमें व्हाट्सएप हो, वो Yeah, वाला काम किया जाए जिसमें डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है, पॉसिबल ही correct, नहीं है। correct. या फिर इस तरह की ऐप्स यूज़ की जाएँ जो आपको Mm-hmm. लॉक आउट कर देती हैं कि Yeah, लॉक ही रहेगा yeah. इस समय पर, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर है। तो Yeah, या also like timing things would help कि ठीक है, मतलब वही हम बात कर रहे थे इतने देर से, टाइमिंग ही बट वही कि ठीक है अभी मुझे काम करना है, सो फॉर एग्जांपल योर वर्क एंटायरली डिपेंड्स ऑन एडिटिंग और रील्स देख के गेट द कंटेंट टू debunk that shit. Sorry for my language, but नो दैट्स yeah. फाइन, दैट्स Okay. फाइन, ऑल गुड। So you need to, like, not you specifically, but people who get lost in this whole thing and फिर बाद में struggle करते हैं यार, I'm like so much into this, I need to work on it. So what you can do is like set जैसे हम जॉब का टाइम रहता है 8 से 5 तक, so वैसे ही give yourself time कि ठीक है इस टाइम से इस टाइम तक ही I'm going to work on this, I'm not going to put my entire night editing this shit. मैं सुबह उठ के कर लूंगा, या मैं like just office hours, just make your office hours if this is what you work, this is the whole bread and butter for you. Is it या making sense? दैट, या दैट्स व्हाट आई हैव स्टार्टेड एक्चुअली। Yeah. मैं Oh, कॉन्शियस that's great. एफर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि Correct. कॉन्शियस एफर्ट कर रहा हूँ कि मैं कम से कम करूँ अपना स्क्रीन टाइम, Yeah. और ज़्यादा टाइम आउटसाइड में करूँ, क्योंकि Yeah. वो इट इज़ ऑल्सो स्टार्टेड टू अफेक्ट मी एज वेल, कि Mm-hmm. मैं मेरा थोड़ा कॉग्निटिव एबिलिटी अफेक्ट होने लग गई है, और Correct. मैं बहुत सेंस कर सकता हूँ 2-3% का भी ड्रॉप होता है ना, Yeah. कि जब मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ या Yeah. मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो वो Yeah. चीज़ मुझे आई एक्चुअली कैन नॉट डू दैट। Exactly. वो You चीज़ get सबसे ज़्यादा exhausted, इम्पोर्टेंट है right? मेरे लिए। Yeah. Brain की एनर्जी लाइफ, सारी इसमें यूज इतनी ज्यादा हो गई है that ये चीजें या, हैम्पर होती है, and then if you're in sub में, if your sleep schedule is also kind of boomed, ओ या, boomed नहीं, sorry, doomed, तो और problem. दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ So ट्रू। yeah. So मुझे लगता है yeah. फ़ोन जो है ना एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ख़राब इन्वेंशन थी इंसान की, मुझे ऐसा लगता है, मोबाइल फ़ोन। Yeah, it actually, I mean, it goes for everything, मतलब हर चीज के लिए it goes both ways, right? So हम पे obviously usually वो ज्यादा नेगेटिव तरफ चले जाता है. बट इफ़ यू But थिंक ऑफ मोबाइल yeah, फ़ोन्स विथ yeah, इंटरनेट, yeah. व्हाट गुड इट हैज़ कम टू? नथिंग। अगर No, हम if you have क्यों? internet access, see, जब see, if there's a computer, right? कंप्यूटर थे जिसमें सिर्फ इंटरनेट थे, फोन में नहीं थे, तो you to gather some information, to read something, to whatever, like access something that is on internet, you would have to be in front of the computer, right? अभी फोन में अगर आ गया access, I can read research papers चलते फिरते, I can बट listen to research papers, it's a बट good दैट and टाइम वाज ऑसम, आई हैव बीन इन दैट टाइम एज वेल। right, मैं बहुत right. पुराना आदमी हूँ अगेन। तो मुझे पता है कि वो टाइम ज़्यादा बेहतर था। अगर हम कंपेयर करूँ ना, अगर लोग मुझे Okay. बोलेंगे कि Yeah. क्या अंकल वाली बातें कर रहा है, बट कि मैंने अपना सिग्निफिकेंट पोर्शन बिताया है बिना फ़ोन्स के भी, Yeah. बिना उसके। Yeah. इट वाज लाइक सिंपलर टाइम्स, मतलब मैं अगेन Yeah. ओल्ड पीपल वाइब दूंगा तो आई डोंट केयर लोग क्या बोलेंगे, नहीं, बट नहीं, yeah, yeah. मुझे It's मुझे ऐसा लगता subjective, है right? कि oh It's yeah, your it's entire mine, it's my experience. thing. Yeah. Yeah, of Mhm. course, if you ask Yeah. younger generation जो मेरे Mhm. बाद आए हैं, उनको तो Mhm. 100% लगेगा कि हाँ, फ़ोन इज़ समथिंग दैट दे कैन नॉट लिव विद, बट आई थिंक मैं उस बात पर अडिग रहूँगा कि मोबाइल फ़ोन्स विथ इंटरनेट हैव आर द वर्स्ट इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन काइंड। मुझे ऐसा लगता है वो बस, उसके बिना ज़िंदगी बहुत आसान चल रही थी। कंप्यूटर, इंटरनेट, वो सब बहुत अच्छा Yeah. था, और जब Yeah. मोबाइल फ़ोन नॉर्मल मोबाइल फ़ोन्स जो थे नोकिया वाले डब्बे वाले, वो बहुत Yeah. अच्छे थे। Yeah. या तो मैं तो उस पर Yeah, as long as it was like just to get in touch with somebody on call. Yeah, ओ text. या, वरना, yeah. इट वाज वेरी गुड टाइम्स। बट एनीवे, नथिंग वी Yeah. कैन डू। थोड़ी लंबी खिंच गई बातचीत, बट अगर Mhm. आप कंक्लूडिंग
चीज़ में अगर आप कुछ ऐसी बुक्स आप जो पढ़ रहे हैं, अगर कोई ऐसी बताना चाहें इन जनरल, नॉट रिलेटेड टू द क्वेश्चन आई आस्क्ड, हम्म। बट इन जनरल अगर आप 2-3 ऐसी बुक्स बताना चाहें कि जो लोग पढ़ना शुरू कर सकें अपना हैबिट को चेंज करने के लिए और दिमाग को भी चेंज करने के लिए होपफुली, तो इज Honestly, इट या या आई एम, मेरे से टॉप ऑफ द हेड में नहीं है, क्योंकि माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ रीडिंग आई एम लाइक ट्रेनिंग माई सेल्फ टू रीड मोर, क्योंकि मैं बचपन में क्यों, मतलब इवन लाइक 3-4 years पहले तक मैं नहीं पढ़ रही थी, आई वॉजंट इन टू रीडिंग, active reading. I was a procrastinator. But abhi, when you understand the importance, you start to do it. So dera hai durust hai, but yeah, I have gotten into it. But some really amazing books that I can think of right away is Behave by Robert Sapolsky. फिर आपके पीछे और मेरे पीछे सेपियंस है, तो आई थिंक सेपियंस इज एन अमेजिंग बुक टू रीड ट्रू एज वेल. इट्स लाइक so ट्रू so cool. Oh my god. अमेजिंग या सो ये भी बुक्स है. एंड अगेन, मतलब जो जो पसंद आए वो बस बस रीडिंग स्टार्ट करो, बीट एनीथिंग, बीट लिटरली एनीथिंग. और मेरा रीडिंग ऑनेस्टली चालू हुआ रिसर्च पेपर्स से, जो मुझे कुछ समझ में नहीं आते थे ऑफ कोर्स, बट आई हैड टू बिकॉज असाइनमेंट्स थे. एंड देन इवेंचुअली वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के बाद वो ज्यादा सेंस बनने लग गए. But या yeah, just point being, just start to read something. Maybe it's a blog, but read it. या And दैट इज ट्रू Mera personal choice is usually, reading something that is informative, like novels. I don't know, haven't read much, but जैसे historical चीजें है, या फिर करंट इश्यूज के रिलेटेड जो हिस्टोरिकल चीजें हैं जो लिखी गई है काफी सारी. सो वो सब, जैसे अभी इन टर्म्स ऑफ दिस स्पेसिफिक हिस्टोरिकल चीज अगर मैं बोलूँ तो मैं कास्टिज्म पे बहुत ज्यादा पढ़ रही हूँ फिलहाल. सो आई ओके हैव दीज बुक्स that I've not able to finish because of course time की थोड़ी ये है, और फ्री टाइम मिल जाता है तो ऐसा लगता है रेस्ट कर लूँ, but yeah, working on it. But yeah, just like do something as in read something, start to read, and eventually it'll just like form the habit eventually. या Sorry, I think this wasn't really helpful, but No, no, yeah. that's good. That's good. No, it was not like again no answer is correct answer Right. वाली बात है कि जो आप कर रहे हो Yeah, और अगेन परफेक्ट आंसर्स डू नॉट एग्जिस्ट, यह मैं हमेशा बोलता that's हूँ कि true. कोई Yeah. हम तो अब जो हम कर रहे हैं या हमें लगता है वो सही है, Yeah, और बाकी जो जिसको जैसा लगता है वो वैसा करेगा, राइट? बेसिकली तो correct. वही बात है. Yeah, yeah. या तो ऐसा कुछ नहीं है, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और बहुत अच्छा लगा बात करके मुझे, Oh, likewise. और होपफुली आई हैव नॉट टेकन मोस्ट ऑफ योर हॉलीडे. नहीं नहीं नहीं, इट्स चिल एक्चुअली. आज मेरा वैसे भी प्लान सिर्फ मेरे कैट के साथ टाइम स्पेंड करना था. सो या, गुड 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 गुड. ही इज स्टिल तो अराउंड, या लाइक जस्ट बीइंग अराउंड, तो है ही साथ में. आगे भी बातचीत करते रहेंगे आपसे, तो यस, आई एम सो डाउन थोड़ा फॉर टाइम इट. निकाल लीजिएगा. अरे ऑफ कोर्स. नाइस. चलिए, ओके, बाय, बाय. मिलते हैं, बाय, गुड यस, ऑफ नाइट, कोर्स. ओ गुड डे आपको गुड रादर. नाइट. बाय बाय.